So, as I told you in the last week's discussion, that this case study is about the two airlines. A person called McPherson was traveling with uh, a UK-based airline that was actually British Airways, but they did not mention the name in the case. That is, they did not mention the real name. And the other airlines with which he was traveled was US-based. The real name of the airline was Delta Airline. So, what this case study tells us, okay? So, this particular case study actually highlights the complex issues relating to increased service standards in the network age. And what are the learning objectives? The learning objectives are that the student should understand the inter-organization information systems, databases, and global interconnectivity. Together, create platforms for higher service levels and more complex platforms, which a firm ignores at its peril. Okay, so first we should have, or we should see a little background of the US travel industry. Okay, तो basically general environment जो है वो ये है कि जो आपका जो weather conditions are not really good. Okay, there are significant flight delays and there are probable flight cancellations due to the bad weather. और जिस जगह की जो है बात हो रही है बेसिकली जहाँ पे सारा का सारा इवेंट्स जो है वो हुए हैं दिस इज अ सिटी कॉल्ड एटलांटा ओके नाउ as you know that in travel industry there is a general stress and pressure on all the staff of the airline, okay, and in most of the time there are many difficult decisions that they have to make. So if we look at the bottom line, it is a very difficult environment, that is for the travel industry, okay. Then there are substantial pressures as well as opportunities to win the long term customer loyalty, okay. Or you may have customers who are hostile towards you because you did not serve them well. Moving forward, the second airline, which is the UK based airline that, as you can see on the slide, uh, in reality, this airline is the British Airways, but the real name of the airline has not been mentioned in the case study. Okay. Now, the difference between the US based airline and the UK based airline is that Atlanta City, the airport on which these events took place, it's actually a hub for the US based airline. So हम assume कर सकते हैं कि क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है या यूएस बेस्ड एयरलाइन का जो है वो हब है, तो यहाँ पर जो है वो इनका ज़्यादा स्टाफ होगा, ज़्यादा रिसोर्सेज होंगी, ओके. And since the airline is US based, so they have their connections, they have their own setup, okay. But when you talk about the British Airways, okay, that is the UK based airlines, उनके लिए जो है वो ये एयरपोर्ट जो है ये कोई एक मेजर डेस्टिनेशन जो है वो नहीं है, ठीक है. यहाँ से जो है वो इनके पास पैसेंजर्स जो है वो होते हैं जिनको जो है वो यूके लेके जाते हैं, बट it is this particular destination is you can say a long distance destination for them. They do not have much staff, much resources to handle at this particular airport, okay. Now, and remember that we are talking about two airlines, right? The one is the UK based and the other one is the US based. So, of course, there are cultural differences, okay? There are resource differences, there are different business priorities, there are different service standards, and so on. So, this is the environment in which all these events are taking place. Okay, now, अभी तक का जो हमने डिस्कशन किया है या आपको जो ट्रैवल इंडस्ट्री का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसके बारे में जो बताया है या इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जनाब के ये दोनों एयरलाइंस दो डिफरेंट कंट्रीज से जो है बिलोंग करती हैं, दो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करती हैं. इनके जो है वो जो रिसोर्स सेट्स हैं, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स की बात करें या दूसरे रिसोर्सेज की हम बात करें, ठीक है, दे आर एक्चुअली डिफरेंट. तो
बेसिकली इस डिस्कशन का पर्पस जो है वो ये है कि यू अंडरस्टैंड दैट व्हेन this particular person called Macpherson is traveling, he may or may not realize that there are going to be multiple pressures on the airlines under which they are operating. So many of the assumptions and many of the expectations this particular person had with the airline, it may be legitimate, but it may not be feasible for the airline to do the same for him. All right. So this is the discussion of the Atlanta-based airline, the US-based airline, right? In reality, the Delta airline, I already talked about it. Okay. Okay. Now, the question is that what are Professor McPherson's assumptions about what the gate agent at British Airways would know about him, and what type of enabling technologies were needed for these assumptions to be true? अच्छा, अब सिलसिला जो है वो ये हुआ है कि ये मैकफर्सन साहब जो थे ये जो ब्रिटिश बेस्ड एयरलाइन है ब्रिटिश एयरवेज, इससे वो ट्रैवल कर रहे थे और इस एयरलाइन के साथ जो बेसिकली ही हैड अ कनेक्टिंग फ्लाइट with the British Airways to go to London from Atlanta. But there were some many unfortunate events that happened, and he was actually not happy at all with the way British Airways handled him. Okay, so now let's go one by one with the different events and what were the expectation of McPherson and what could really happen. Okay, now, पहली चीज, fare on the ticket. So McPherson assumption was that the agent would know that this is not just a first class ticket, but that it is a full fare ticket. That is not an upgrade or frequent flyer. अच्छा, अब मैकफर्सन साहब जो है वो बेसिकली जब गेट पर जो है पहुंचे हैं, ठीक है, तो अब उन्होंने जो है वो जब एजेंट को जो है वो टिकट दिया है अपना, ठीक है, और ये बताया कि जनाब कि मैं आई एम बोर्डिंग ऑन दिस फ्लाइट, तो उनका assumption जो था वो ये था कि जनाब कि जब मैं उसको अपना जो है वो टिकट जब एजेंट को दूंगा, तो एजेंट के पास जो है वो ये रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए कि जनाब ये जो फर्स्ट क्लास टिकट मैं इसके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एक अ, एक ऐसा फर्स्ट क्लास टिकट है कि जिसकी मैंने कंप्लीट मतलब फुल प्राइस मैंने पे की है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो टिकट हो वो बेसिकली आपने जो है फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स होते हैं, वो आपने जो है वो अर्न किए हों, ठीक है? और उन माइल्स को जो है वो कन्वर्ट करके जो है वो आपको टिकट जो है वो दे दिया गया हो। सो बेसिकली यू डिड नॉट पे कैश फॉर दैट पर्टिकुलर फर्स्ट क्लास टिकट, रादर यू एक्चुअली अर्न्ड इट बिकॉज़ ऑफ योर प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री। तो उनका असम्पशन जो था वो ये था कि जनाब कि मैंने जो है वो फुल जो है वो प्राइस पे की है इस फर्स्ट क्लास टिकट की। तो एजेंट को जो है पता होना चाहिए कि जनाब कि ये जो है ये कोई एक अपग्रेडेड टिकट नहीं है, और एज़ सच जब इनको पता है कि जब मैंने फुल फेयर पे किया है तो उनको मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए और इस बात को जो है ज़्यादा ऑनर करना चाहिए कि जनाब कि आई एम देयर फुल पेइंग कस्टमर। इशू क्या है जनाब? इशू जो है वो ऑफ कोर्स हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि भी जो दो एयरलाइंस हैं, इन दो एयरलाइंस के दरमियान जो है वो रिसोर्सेज का फ़र्क है, एंड देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस द वे दे इम्प्लीमेंटेड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन देयर ओन ऑपरेशन। तो ऑफ कोर्स अगर जो है वो टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, तो जो रिजर्वेशन रिकॉर्ड है ब्रिटिश एयरवेज का, ठीक है, ये लंदन में नॉर्मली होगा, ओके, बिकॉज इट्स अ यूके बेस्ड एयरलाइन। और हो ये सकता है, मतलब एक पॉसिबिलिटी जो है वो ये हो सकती है कि जो रिजर्वेशन रिकॉर्ड है, ये रिजर्वेशन रिकॉर्ड जो है ये जब फ्लाइट जो है जब ऑपरेट होने जाएगी या फिर जब टिकट जो है बुक होगा, तो ये रिजर्वेशन रिकॉर्ड जो है ये उस एजेंट के पास भी अवेलेबल होना चाहिए कि जो कि यूएस के एयरपोर्ट पर फ्लाइट को जो है ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। ये बुनियादी तौर पर एक रीजनेबल एजम्पशन है। लेकिन जो इवेंट्स अकर्ड हुए हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जनाब कि ऐसा जो है वो नहीं था। तो वो जो एजेंट था गेट पर, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि जनाब कि ये फुल फेयर टिकट है या अपग्रेडेड टिकट है। अच्छा, दूसरी चीज़, मैकफर्सन साहब जो है वो इनके गोल्ड कार्ड मेंबर हैं, ठीक है। गोल्ड कार्ड मेंबर का मतलब जो है वो ये है कि जनाब कि ये मतलब जो पर्टिकुलर कस्टमर जो होता है ये इनका एक रेगुलर पैटर्न होता है, ठीक है। और ये एक ऐसा मतलब समझ लें कि एक ऐसा ट्रैवलर है, एक ऐसा पैसेंजर है एयरलाइन का कि जिसको जो है वो एयरलाइन जो है वो रिगार्ड करती हैं, उनको जो है वो एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस देती हैं। उसकी वजह जो है वो ये है कि ये इनके साथ जो है ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा पैटर्न करते हैं, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे मैकफर्सन का एक assumption जो था वो ये था कि सिंस आई एम अ गोल्ड कार्ड मेंबर, सो एजेंट एट द गेट
कि जो कि बेसिकली जो है फ्लाइट को जो है बुक करके इनको जो है वो आगे भेजता है, उसको जो है वो इल्म होना चाहिए कि जनाब कि मैं उनका जो है वो गोल्ड कार्ड मेंबर हूँ, और एज सच मुझे जो है वो ज़्यादा रिस्पेक्ट, ज़्यादा रिगार्ड मिलनी चाहिए थी। अच्छा, अब मैकफर्सन साहब का ये जो एजम्पशन है, ये थोड़ा-सा जो है हम उसको कहेंगे कि ये स्पेकुलेटिव है। उसका रीज़न जो है वो ये है कि अगर आप गोल्ड कार्ड मेंबरशिप की आप बात कर रहे हैं, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट रिलेटेड विद द फ्लाइट डेटा, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन जो है ये नॉर्मली उस एयरलाइन के हेडक्वार्टर में जो है मौजूद होगी कि जिस एयरलाइन के आप गोल्ड कार्ड मेंबर हैं। So this information may be available in the US and it may not be available in the US. However, that was the assumption of Mr. McPherson that this information would be available with the agent, and as such, the agent would greet him and the agent would give him more regard कि ओके जी आप हमारे गोल्ड कार्ड मेंबर हैं, ठीक है, तो आपको जो है वो बाकी जो रेगुलर कस्टमर है उनसे ज़्यादा जो है वो प्रिविलेज और ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। एक और पॉसिबिलिटी जो है वो ये हो सकती थी कि जनाब के आपका आपके जो ट्रैवल एजेंट्स हैं कि जिनके थ्रू आप जो टिकट जो है आप अरेंज कर रहे हैं, वो आपका आपके पास अगर कोई गोल्ड कार्ड मेंबरशिप मौजूद है, तो वो इस डेटा को आपके जो टिकट बुक है, जो जो आप टिकट बुक कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ पंच कर दें, ताकि जो एजेंट है, ठीक है, जो डिपार्चर गेट पे जो है मौजूद है, उसको जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल हो सके, इवन इफ दिस इन्फॉर्मेशन इज कैप्ट एट द ब्रिटिश एयरवेज हेडक्वार्टर इन लंदन। ओके, देन डेटा ऑन कनेक्टिंग फ्लाइट, ठीक है। जब मैकफरसन साहब जो है अटलांटा एयरपोर्ट पहुंचे हैं एंड ही वाज टेकिंग द कनेक्टिंग फ्लाइट विद द ब्रिटिश एयरवेज, तो जो ब्रिटिश एयरवेज के जो लोग थे अटलांटा एयरपोर्ट पे, उनको इल्म नहीं था कि ये जो हमारा पर्टिकुलर पैसेंजर है ये कनेक्टिंग फ्लाइट पर है। कनेक्टिंग फ्लाइट का मतलब जो है वो ये है कि जनाब ये ऑलरेडी एक फ्लाइट से जो है ये आ रहा है, ठीक है, ये अटलांटा एयरपोर्ट पे पहुंचेगा और अटलांटा एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद ये ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट लेगा फ्रॉम अटलांटा टू लंदन, यूनाइटेड किंगडम। सो दे डिड नॉट हैव द इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, यही केस में जो है मेंशन किया गया है कि जनाब के जो यूएस बेस्ड एयरलाइन थी, दैट इज डेल्टा, ठीक है, they had this particular information on the record or in the system, and at one occasion they actually waited for more than 30 minutes after their scheduled time for the 8 customers who were delayed coming from a connecting flight. So मैकफर्सन साहब का assumption जो था वो ये था कि जनाब कि इनको जो ब्रिटिश एयरवेज वाले हैं इनको इल्म होना चाहिए कि मैं जो है वो कनेक्टिंग फ़्लाइट के ऊपर हूँ, और मिसाल के तौर पर जो है वो अगर मैं थोड़ा बहुत जो है डिले हो जाता हूँ, ठीक है, या मेरी फ़्लाइट जो थोड़ा बहुत डिले हो जाती है, तो उन्हें अरेंजमेंट करने चाहिए, ठीक है। इस बात को ऑनर करना चाहिए कि जनाब कि ओके हमारा एक कस्टमर जो है जो कि गोल्ड कार्ड मेंबर भी हमारा, जिसने फुल फेयर जो है पे किया हुआ है हमारी फर्स्ट क्लास के लिए, वो एक कनेक्टिंग फ़्लाइट से जो है वो आ रहा है, और कनेक्टिंग फ़्लाइट की का जो अराइवल डिपार्चर है इसका इसके बारे में जो है वो इनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और अगर जो है वो किसी किस्म का कोई डिले हो गया है या एनीथिंग दैट हैज़ हैपेंड, then they should make some arrangements so that McPherson, right, could be accommodated. However, they did not do it. Now, the thing is that this is what we will call, this is not a normal assumption. This is a speculative assumption. आप इस बात को जो है वो desire तो कर सकते हैं, but it is not necessary that this data would be available with the booking agents at the departure gate. Okay. Delta had the system. Delta had more extensive system as compared to the British Airways. Okay, but the British Airways did not have this information, but the MacPherson actually checked in. Another thing was that के मैकफर्सन का assumption जो था वो ये था कि जनाब कि मेरे पास जो है वो कोई लगेज जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी जो है फॉर एग्जांपल उनको जो है वो होनी चाहिए कि जनाब कि मेरे पास जो है वो कोई लगेज जो है वो नहीं है। तो लगेज नहीं है तो उसका मतलब जो है वो ये है कि जनाब जो मेरी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है, मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट से जो है कोई भी ऐसा बैगेज नहीं होगा कि जो कि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट से जो है वो ब्रिटिश एयरवेज़ की जो मेरी फ़्लाइट है, जो मैं अटलांटा से लंदन के लिए ले रहा हूँ, उसमें जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है? ओके, अब बॉटम लाइन ऑफ एनालिसिस जो है वो क्या है? बॉटम लाइन ऑफ एनालिसिस जो है वो ये है कि ये जितने भी जो इश्यूज़ हैं, जो कि मैकफर्सन को जो है वो पेश आए हैं, ठीक है? अ, इसका इसमें जो है वो जो बेसिकली जो एक्सपेक्टेशन है पैसेंजर की, जिसका नाम मैकफर्सन यहाँ बोल रहे हैं, ठीक है? वो इस बात पर बेस कर रही हैं कि उसका जो एक्सपीरियंस रहा है यूएस बेस्ड एयरलाइन के साथ वो क्या रहा है, ठीक है? उसका यूएस बेस्ड एयरलाइन के साथ जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी जो है वो अच्छा रहा है,
USA based airline, that is Delta Airline. Okay? They have used information technology in much better ways than the British Airways. Okay? And so this case study actually tells us that in this present age, especially in the service industry, right? There are much higher expectations of the customer, and in order to meet their expectations, in order to raise their service standards, it is actually very very important that they utilize the information technology in the right ways. And this case study tells us that inadequate or inappropriate use of information technology by the two large airlines that belong to the two different countries, two different cultures, right, can make the customers very unhappy. We should remember that in this age of globalization, we are going to have the customers from around the globe, and these customers do not realize the fact that if the companies that belong to the two different cultures, two different countries, there in order to maintain the service standards, there are going to be multiple pressures on them, and every airline actually differs in its ability to cope up with these pressures and to maintain the level of service desired by the customer. And in order to maintain this desired level of service by the customers, it is very very important that the service organizations such as the airlines must make a strategic appropriate use of information technology. And we see in this case that the British based airline, that is British Airways, did not do it appropriately. So these were some of the alternatives that British Airways could do uh, to handle the case of the McPherson. All right, they could hold the airplane. That was the most attractive alternative if we talk with respect to the McPherson. ठीक है, लेकिन ऑपरेशनली जो है वो शायद जो है ये फिजिबल जो है वो नहीं होता. ठीक है कि जनाब कि हम एक बंदे को जो है वो फ्लाइट पर सवार करवाने के लिए जो है वो अपनी जो शेड्यूल फ्लाइट है उसको जो है हम डिले करें. ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो था वो ये था, होल्ड द प्लेन एट द गेट अंटिल द शेड्यूल डिपार्चर टाइम. ठीक है, इस केस में जो है बताया गया है कि जो ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट थी, ये अपने शेड्यूल डिपार्चर टाइम से थोड़ा सा पहले ही जो है ये डिपार्ट कर गए. ठीक है, then third option could be that send an agent to meet McPherson at his arrival gate and attempt to get him to the plane. ठीक है, rather than ये कि जनाब कि आप जो है वेट करें कि जी कि मैकफरसन जो है वो आपके पास आए. और ठीक है, आप एक काम जो है वो ये कर सकते थे कि अगर आपके पास डेटा मौजूद होता कि मैकफरसन की जो है वो कनेक्टिंग फ्लाइट जो है कौन सी है, वो किस गेट से जो है वो आ रहा है, तो आप ब्रिटिश एयरवेज जो है वो अपना एक एजेंट जो है वो वहाँ पे भेज भेज के मैकफरसन को जो है रिसीव करवा सकते थे. और इसके बाद वो देख सकते थे कि जनाब कि किस तरह से जो है इस पैसेंजर को अकोमोडेट कर सकते हैं. ठीक है, as you can read on the slide that it could have been an outrageous act of good service, but that could be an option that they could use to calm down McPherson. Then they could have an agent at the British Airways departure gate briefed on McPherson's situation and action alternatives in hand. ओके, आप ऑफ कोर्स आप एक काम ये भी कर सकते थे कि जनाब कि एक जो आपका जो एजेंट था, ठीक है, उसको जो है वो आप जो ब्रिटिश एयरवेज की जो फ्लाइट थी जहाँ से जिस गेट से उसको डिपार्चर होना था, उसको वहाँ पे भेजते हैं और वहाँ पे जो स्टाफ था उसको जो है वो आप ब्रीफ करते कि जनाब this is there is a person, there is a passenger who is on the collecting connecting flight and this connecting flight is delayed. So let's discuss what are the options in our hand so that this customer does not get angry that we did not serve him well. ओके जनाब. ओके, अब जो बॉटम लाइन जो थी हमने पहले जो है हमने एक्सप्लेन आपको कर दी थी. ठीक है, प्रॉब्लम जो है वो ये है दोनों एयरलाइंस के दरमियान के जब आप एक ऐसे एयरपोर्ट से ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है, कि जो कि आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है या जो आपका हब है, तो वहाँ पर जो है वो आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होती हैं. ठीक है, ज़्यादा आपके पास जो है वो आप कह सकते हैं कि आपके पास स्टाफ होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती हैं, मटेरियल रिसोर्सेज होती हैं. ठीक है, कि जिसकी वजह से जो है वो आप सिचुएशन को खास जैसा कि इस केस स्टडी में जो इवेंट्स हुए हैं उसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं. लेकिन अगर जो एयरपोर्ट है ये अगर आपके लिए कोई एक मेजर एयरपोर्ट जो है वो नहीं है, मेजर डेस्टिनेशन जो है वो नहीं है, तो इसका मतलब जो है वो ये है कि यू मे नॉट हैव एम्पल रिसोर्सेज टू डील विद सिचुएशन लाइक दिस that actually happen. Okay, I have already explained the bottom line, and these are some of the assignment questions. Okay, that you should be able to answer after reading the case study, after going through this class discussion. Okay, now I shall move on to the case of the
Taco Bell. This is the second case study of our topic IT and the business models. ठीक है जी. अच्छा, अब इसका जो मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता दूं टाको बेल का. ओके, टाको बेल का की जो ब्रीफ है वो ये है कि दे आर अ फास्ट फूड कंपनी. ठीक है, एंड in the beginning they were a Mexican fast food company. ठीक है. जॉन मार्टिन साहब जो हैं वो इनके नए प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं. ठीक है. जॉन मार्टिन का जो है वो बड़ा एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है फास्ट फूड इंडस्ट्री में, और इसने जो है वो ज्वाइन किया है टाको बेल को. और अब इसका एम जो है वो ये है कि जनाब ये जो एग्जिस्टिंगली जो है वो टाको बेल जो है वो चेन ऑफ मैक्सिकन फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स है. ठीक है. लोगो जो है वो आप देख सकते हैं. ठीक है. अ मैन स्लीपिंग अंडर अ सोम्ब्रियो सोम्ब्रियो. और जॉन मार्टिन साहब का जो टाको बेल की जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, ठीक है, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड. वो समझता है कि जनाब के हम अभी ये नहीं समझते कि हम किस बिजनेस में हैं. ठीक है, हम फास्ट फूड बिजनेस में हैं, हम कस्टमर कन्वीनियंस फूड बिजनेस में हैं, हम कस्टमर सर्विस बिजनेस में हैं. सो इन हिज व्यू टाको बेल इज currently confused that in what kind of business they are, and he thinks that until unless the Taco Bell really understands that what kind of business they are in, it is not possible for them to move forward, to become profitable, and to become a leader in the industry in which they are operating. So this is what is listed as the last bullet point of this slide. Who are we? Until unless we understand who are we, right? As the third bullet mentions, could Taco Bell dance? मीनिंग क्या है इसका? मतलब जो है वो ये नहीं है कि ऑफकोर्स कीजिए कि टाको बेल के जो एम्प्लॉइज हैं या टाको बेल जो है वो रियली स्टार्ट्स डांसिंग. बात जो है वो ये है कि जनाब कि क्या जो टाको बेल है, टाको बेल कुड बिकम अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स इंडस्ट्री. बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड that whether the Taco Bell could become a dynamic organization in their industry, it will be very important question to answer that who are we, in which business segment we are. ओके, अब थोड़ा सा जो है वो इसका कंपनी और इंडस्ट्री के जो है बैकग्राउंड के बारे में हम बात कर लेते हैं. ठीक है. फास्ट फूड मार्केट, ये जो केस स्टडी है इट्स फ्रॉम 1980s टिल 1990s. मतलब एक अच्छा खासा लंबा पीरियड जो है वो कवर किया है उन्होंने टाको बेल की जो है ट्रांसफॉर्मेशन का. ठीक है. And it serves as a very good point to understand that how the information technology can be gradually implemented to become to actually transform an organization that was not highly profitable into an organization that was not only highly profitable but was expanding quickly. ठीक है. अच्छा, अब ये जो जब 1980s की जगह हम बात करें, ठीक है, तो फास्ट फूड इंडस्ट्री जो थी, ठीक है, इट वाज स्टार्टेड टू बिकम मैच्योर. ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया था. राइट. अर्ली 1980s के टाको बेल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो प्रोडक्शन थी वो लेबर इंटेंसिव थी. ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम था. जो फास्ट फूड जो बनाया जाता था, ठीक है, तो उसकी जो कुकिंग थी, कुकिंग भी जो है वो फॉर एग्जांपल इनकी जो लोकेशन होती थी उन लोकेशन के जो है वो अंदर हुआ करती थी. ठीक है. जो फूड असेंबली लाइन थी, फूड असेंबली लाइन जो थी वो आपका जो कस्टमर जहाँ पर जो है वो आपके ऑर्डर प्लेस किया करते थे, ठीक है, उनके बिल्कुल पीछे हुआ करती थी. नाउ इफ़ यू रिकॉल द डिफरेंट फास्ट फूड रेस्टोरेंट, ठीक है, अगर आपने विजिट किया हो फॉर एग्जांपल बर्गर किंग को, KFC को, ठीक है, तो आपने जो है वो नोटिस किया होगा कि आप जब ऑर्डर काउंटर होता है, ठीक है, ऑर्डर काउंटर के पीछे ही जो है वो इनकी असेंबली लाइन भी होती है कि जहाँ पे जो है फूड सारा जो है प्रिपेयर हो रहा होता है. ठीक है. लेकिन ये जो अभी आप फूड प्रिपरेशन लाइन जो आप देखते हैं, दिस लाइन इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द लाइन वेयर द कस्टमर प्लेस द ऑर्डर. ठीक है. ये जब हम 1980s की जब बात कर रहे हैं तो 1980s में ये जो फूड प्रिपरेशन लाइन थी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ करती थी, ये पैरेलल हुआ करती थी. ठीक है. तो जब लाइन पैरेलल हुआ करती थी तो उसका मतलब जो था वो ये था कि जनाब के कस्टमर जो लाइन में लगे हुए होते थे, ठीक है, वो ये भी देख रहे होते थे कि जनाब अच्छा ये किस तरह से जो है वो फूड जो है वो वन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है वो पास ऑन हो रहा है.
मिसाल के तौर पर जो है वो अगर एक टाको का जो है वो ऑर्डर जो है प्लेस होता है, तो ऑफ कोर्स जो है आपकी जो फूड असेंबली लाइन है, ठीक है, उसके सबसे शुरू में जो आदमी होगा उसने जो है वो ही हैज टू पिक अ टाको, ही हैज टू प्रिपेयर द टाको एंड देन पास ऑन टू द अदर पर्सन, ठीक है, एंड सो ऑन. सो द कस्टमर्स वर एबल टू सी हाउ द फूड वाज बीइंग प्रिपेयर्ड, ठीक है. तरीक़ाकार जो है ये होता था कि जनाब कि जब आपने ऑर्डर जो है जब आपने प्लेस किया, तो कैशियर ने जो है वो आपसे ऑर्डर लिया, और इसके बाद जो है वो एक प्लास्टिक बोर्ड जो है वो उस फूड असेंबली लाइन के साथ जो है उन्होंने प्लेस किया हुआ था. उस फूड असेंबली लाइन के ऊपर जो है वो उन्होंने उस ऑर्डर को जो है वो मैनुअली जो है लिख देते थे. और इसके बाद जो है वो जो वहाँ पे जो फूड असेंबली लाइन पे जो लोग काम कर रहे होते थे, वो उस ऑर्डर को जो है वो रीड करते थे, और उस ऑर्डर को रीड करने के बाद जो है उस ऑर्डर को प्रिपेयर करना शुरू कर देते थे. जब वो उस ऑर्डर को प्रिपेयर करना शुरू करते थे, ठीक है, मतलब वो वर्बली उन्होंने इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन जो है पास ऑन की, ऑर्डर प्रिपेयर करना शुरू किया, देन दे रिमूव दिस ऑर्डर फ्रॉम द बोर्ड, ठीक है, ताकि दूसरे ऑर्डर जो है वो लिखे जा सके. ओके. अच्छा, ये जो तरीक़ाकार था, ऑफ कोर्स इस तरीक़ाकार में जो है वो बहुत सारी जो है वो गलतियाँ भी जो है वो हुआ करती थी. मिसाल के तौर पर जो है वो आपने जो है वो ऑर्डर को जो है वो वर्बली जो है वो आपने अपने लोगों को जो है पास किया, उन्होंने वो ऑर्डर जो है उन्होंने बनाना शुरू किया, और उस ऑर्डर को बनाने के दौरान जो है फॉर एग्जांपल अगर उनके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस हो गई इस ऑर्डर की, ठीक है, तो ये उस वक्त तक पता नहीं चलेगा कि जब तक जो है ये ऑर्डर जो है वो कस्टमर को जो है डिलीवर नहीं किया जाएगा. सो देयर वर मैनी एरर्स, ठीक है, कि कोई चीज़ का मतलब ऑर्डर कुछ था, कस्टमर को जो है वो हमने कुछ डिलीवर कर दिया, एंड सो ऑन. Similarly, when the customers were able to see the whole the assembly line, ठीक है, तो जो रश आवर्स होते थे कि जहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोड होता था, ठीक है, चीज़ें बनाने का, तो उसमें जो है वो कस्टमर वर एबल टू सी कि जनाब कि किस तरह से जो है वो एक तरह से एक chaotic सिचुएशन हो रही है, लोग जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है, विच वॉज एक्चुअली नॉट कंसिडर्ड गुड साइन, ठीक है, कि हम हमारे कस्टमर जो है वो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हों कि जो कि हम खुद से जो हैंडल कर सकते हैं, वी डू नॉट नेसेसरली नीड टू शो द कस्टमर दैट हाउ वी एक्चुअली वर्क. देन अगर हम इनकी मैनेजमेंट साइड की हम बात करें, ठीक है, तो रेस्टोरेंट के अंदर जो इनका जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर था, ठीक है, देयर वर रेस्टोरेंट मैनेजर, देयर वर असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर एंड शिफ्ट सुपरवाइजर्स, ठीक है, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व थे ऑपरेशन के अंदर, ठीक है. रेस्टोरेंट मैनेजर जो थे ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को रिपोर्ट किया करते थे, ठीक है. अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो थे बुनियादी तौर पर इनका जो इनिशियल जो किरदार था, इट वाज लाइक अ पुलिसमैन. उनका काम सिंपली सा जो है वही होता था कि जनाब के रेस्टोरेंट को जो है उन्होंने जो है वो विजिट किया, और रेस्टोरेंट को विजिट करने के बाद जो है वो उन्होंने जो है वो उनकी जो फॉर एग्जांपल जो अकाउंटिंग बुक्स है, अकाउंटिंग बुक्स को चेक करना, ठीक है, उसके बाद जो है वो उनको डांटना कि जनाब कि आप जो है वो हेडक्वार्टर्स के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है. एंड दे प्रोवाइडेड द रेस्टोरेंट मैनेजर्स एंड असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर लिटिल टू नन कोचिंग और गाइडेंस, ठीक है. अच्छा, कि जो इनकी जो थोड़ा-सा जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो इनका जो फूड प्रिपरेशन वगैरह के बारे में, कि जो ये जो उनके रेस्टोरेंट मैनेजर्स थे, असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर और सुपरवाइजर जो थे, दे वर डीपली इन्वॉल्व्ड इन देयर ऑपरेशंस, ठीक है. अच्छा, जो हेडक्वार्टर था, हेडक्वार्टर की जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि जनाब के फूड जो है, ठीक है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी फूड होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए. सो व्हाट हैपेंड के हेडक्वार्टर जो था, इनको जो है वो बेसिकली जो तमाम के तमाम जो रॉ मटेरियल सप्लाईज थी, वो जो है वो डिस्पैच करवाया करता था, ठीक है. और इसके बाद ये जो मैनेजमेंट थी रेस्टोरेंट की, ठीक है, दे वर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग ऑल दी रॉ मटेरियल्स, ठीक है. ensure ensure that all these raw materials are distributed properly, all the raw materials are clean, the food prepared is actually fresh, the food prepared is actually according to the customer demands and needs. Okay. अच्छा, अब 1983 टू 1998, ठीक है, ये जो एरा है, ठीक है, ये एक ऐसा एरा है कि जिसमें जॉन मार्टिन ने जो है वो बहुत सारे जो है वो चेंजेस जो थे वो टाको बेल की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके अंदर उसने इम्प्लीमेंट करने के लिए उसने शुरू किए, ठीक है. अच्छा, क्या क्या उसने जो है यहाँ पे किया है, ठीक है. फर्स्ट ही एक्सेलरेटेड द कंपनीज ग्रोथ. ओके. 249 न्यू स्टोर्स पर ईयर फ्रॉम 1983 टू 1988. तो पहला जो उसने काम किया वो ये उसने किया, उसने कहा जनाब कि मैंने जो है वो हमारा जो साइज है उसको जो है वो हमने ग्रो करना है, ठीक है. सो इन दिस पर्टिकुलर एरा दे ग्रू एट एन एवरेज ऑफ 249 न्यू स्टोर्स. अच्छा, इन द बिगिनिंग कि जब जॉन मार्टिन जो है टेक ओवर किया था, ठीक है, तो इनके 60% ऑफ द स्टोर जो थे वो फ्रेंचाइज थे. फ्रेंचाइज का मतलब जो है वो ये है दैट टाको बेल
was not dealing and maintaining these restaurants directly, right? These stores were operated by a third party, and they were the franchisees of the Taco Bell. ओके, अच्छा, पैरेलल फूड असेंबली लाइन जो थी उन्होंने जो है वो रिप्लेस कर दी बाय अ डबल असेंबली लाइन परपेंडिकुलर टू द कस्टमर सर्विस एरिया, ठीक है। मतलब इन्होंने ये बिल्कुल वैसी ही असेंबली लाइन है कि जैसे आप आजकल जो है वो किसी भी फूड मतलब किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, या फॉर एग्जांपल किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में आप चले जाएं, तो वहाँ पर जो है ये आपको नजर आएगी, ठीक है, कि काउंटर के पीछे आप देखेंगे कि एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो चल रही है। सो नॉर्मली आप एक परपेंडिकुलर लाइन देखते हैं, इन्होंने अपने रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो डबल परपेंडिकुलर लाइन जो है वो इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। दे आल्सो फोकस्ड ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपके रेस्टोरेंट मैनेजर्स थे, असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर्स थे, ठीक है, इनकी ये सुपरवाइजर्स थे, इनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो कोई फोकस नहीं था बाय द टाइम व्हेन जॉन मार्टिन जॉइन टाको बेल। सिमिलरली जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स थे, जिनके बारे में हमने आपको बताया कि ये पुलिसमैन का किरदार जो है वो अदा करते थे, ठीक है, इनकी भी जो है वो ट्रेनिंग डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो कोई फोकस नहीं था। सो इन दिस पर्टिकुलर एरा वी सी that the Taco Bell started to focus on the training and development of its employees, including uh, the restaurant manager, the assistant restaurant manager, supervisors, as well as the district managers. The next era is the 1988 to 1991. Okay. Now, the Mexican segment of upscale restaurants, fast food, and supermarket food scales grew substantially during the 1980. अब ये वो पर्टिकुलर एरा है, ठीक है, कि जिसमें जो है वो हम डिफरेंट जो इंडस्ट्री सेगमेंट्स है उसके अंदर जो हम ग्रोथ देख रहे हैं, ठीक है। नाउ द कोड you see on your screen, okay, this is a quote from the John Morton. What he's saying: we were really a small player. One of the things that struck us was perhaps we needed to figure out a different way to go about this, as opposed to trying to compete head on with big guys who had well established entrenched brands. Maybe instead of directly competing, maybe we ought to try to change the game a little bit. We are really not in the business of making food, we are in the business of feeding people. तो अब जॉन मार्टिन का ख्याल जो था वो ये था, मतलब ये जो उसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी इस पर्टिकुलर एरा में, वो ये थी कि जनाब के जो इस्टेब्लिश्ड फास्ट फूड ब्रांड्स हैं उनके साथ जो है वो हेड ऑन कंपटीशन जो है वो शायद हमारे लिए जो है इतना ज़्यादा फिजिबल जो है वो ना हो, ठीक है। We should try something new, and most importantly we need to understand that we are not in the business of making food, ठीक है। हमारा जो बिजनेस है वो फूड बनाना नहीं है, हमारा बिजनेस जो है वो लोगों को खाना खिलाना है। सो दिस इज basically a really important difference when it comes to understand what a business actually does. So जॉन मार्टिन की इस पर्टिकुलर एरा में जॉन मार्टिन की जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन थी, it was based on this belief that they are not in the business of making food, rather they are in the business of feeding people. अच्छा जनाब, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे जो है वो जो कंपटीशन है, ठीक है, इंटेंस होता जा रहा है, ज़्यादा ज़्यादा जो है वो प्लेयर्स जो हैं वो इंडस्ट्री के अंदर जो है वो एंटर हो रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, ठीक है, एंड इवन द स्मॉल प्लेयर्स दे आर ब्रिंगिंग मोर एंड मोर or trying to bring more and more new products into the market. So the margins in this particular business are dropping, ठीक है। अच्छा, अब जब मार्जिन जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जनाब कि आप इस बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है, कि आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी जो है वो क्या होनी चाहिए। सो मार्टिन ने दो पर्टिकुलर स्टडीज जो हैं वो कंडक्ट की, ठीक है, दैट वाज द मार्केट स्टडीज, जिनमें जो है वो उसने समझने की कोशिश की कि जनाब के हमारा जो कस्टमर है वो हमसे जो है वो क्या चाहता है। सो द टू मार्केट रिसर्च स्टडीज दैट वर कंडक्टेड बाय द टाको बेल, their finding was that the customer wants fact. FACT. F means the customer wants fast food fast. A, the customer wants fast food that is accurate as per their order. C, the customer wants fast food that is clean. T,
T as in tiger. The customer wants fast food at appropriate temperature. ठीक है, तो अब Taco Bell understood that these are the requirements of the customer. Now, once they understood that these are the requirements of the customer, right? That they want their food fast, they want their food which is as per their order or as per their requirement. They want food which is clean, and they want food which is at the appropriate temperature. So what they did, they adopted a value pricing strategy. अच्छा, value pricing strategy का मतलब क्या था? Value pricing strategy का मतलब जो है वो ये है कि आपने क्वालिटी के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करना, ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर आपने कंप्रोमाइज नहीं करना, बट एट द सेम टाइम क्योंकि these are the requirements of the customer which are actually very basic needs. So what you need to do, you cannot charge a premium price or you cannot charge higher prices for your product. So what you need to do, you need to drop your prices. But now when you drop your prices without dropping the quality, right, जब आप price को आप drop करते हैं लेकिन आप quality को drop नहीं करते, तो this is how you are actually providing value. Okay, but in order to do so, that is dropping the price while not compromising the quality, it is only possible when you reduce your cost. So this is exactly what Taco Bell did. They took a series of action, or they implemented a series of action in order to reduce their cost of operations. Now, the first very important initiative that they took, right, was the K minus, and the other initiative they implemented was SOS, so speed of service. K minus initiative का मतलब जो था वो ये था जनाब किचन माइनस. इन्होंने जो है वो अपना जो रेस्टोरेंट था, अपने रेस्टोरेंट में से जो है वो इन्होंने जो बेसिकली जो किचन था, ठीक है, किचन को जो है इन्होंने रिमूव कर दिया. किचन को इन्होंने रिमूव करके जो है वहाँ पर इन्होंने बेसिकली एक प्रिपेयरिंग एंड हीटिंग असेंबली जो है इंस्टॉल कर दी. अब सिलसिला जो है वो ये होता था कि जनाब आपके पास ज़्यादातर जो आइटम्स होते थे, ठीक है, हेड क्वार्टर जो है वो आपको बहुत सारे आइटम जो है वो प्री प्रिपेयर्ड जो है फॉर्म में जो है वो भेज दिया करता था. ठीक है, आपका काम सिर्फ इतना था होता था कि जनाब के आपने मिसाल पर लेटस है, टोमेटोज हैं, और इसके अलावा जो है फॉर एग्जांपल आपने उसके अंदर जो मीट डालना है वट एवर, ठीक है, ये तमाम के तमाम आइटम जो है ये प्री कुक फॉर्मेट में जो है वो आपके पास जो है वो आपको पहुंचा दिए जाते थे. आपका काम सिर्फ इतना होता था कि जनाब कि जब आपके पास ऑर्डर प्लेस किया जाता था तो यू एक्चुअली टेक द रॉ मटेरियल्स, ठीक है, make the taco or whatever the product the customer has ordered, heat it so that the product is at the appropriate temperature and deliver it to the customer. के माइनस किचन माइनस कर दिया, ठीक है, और इससे उनको फ़ायदा जो है वो ये हुआ कि इनके पास जो है उनका जो रेस्टोरेंट था, ठीक है, उसमें जो है स्पेस उनको काफ़ी जो है अवेलेबल हो गया. तो पहले जो इनके पास जो एक रेशो हुआ करता था वो ये हुआ करता था जनाब कि 30% ऑफ द स्पेस जो था वो बेसिकली जो है वो इट वाज रिजर्व फॉर द कस्टमर्स, and the 70% of the space in the restaurant was reserved for the kitchen and the operations. अब जब इन्होंने किचन माइनस का जो इनिशिएटिव जब इन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो now it was reversed. Now 70% of the space was available for the customers and the 30% of the space was utilized for their restaurant operations. ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो एक और इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट किया दैट वाज SOS और द स्पीड ऑफ सर्विस. अच्छा, स्पीड ऑफ सर्विस जो इनिशिएटिव था, ठीक है, इसका था वो ये था कि बहुत सारी जो इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि चलने वाली प्रोडक्ट्स हैं या बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने वाली प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने जो है वो उसमें से 60% ऑफ द प्रोडक्ट जो थी, ठीक है, उनको अपने पास जो है वो एक प्री प्रिपेयर्ड फॉर्म में जो है वो स्टोर कर लिया करते थे. ठीक है, इस तरह से कि जनाब कि अगर कस्टमर का ऑर्डर जो है उनके पास आता है तो ये तमाम के तमाम प्रोडक्ट जो हैं ये इनके पास प्री प्रिपेयर्ड है, और ये 10 मिनट्स के नोटिस पे जो है वो ये प्रोडक्ट जो है ये कस्टमर्स को जो है ये प्रोवाइड कर सकते हैं. सो दैट वाज कॉल्ड द स्पीड ऑफ सर्विस इनिशिएटिव. वंस अगेन इट इनेबल्ड देम to actually enhance their speed of serving the customers at rush hours. ठीक है, और इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है इनका जो कस्टमर को जो सर्व करने का जो रेट था इट एक्चुअली इंक्रीज बाय 30%. ठीक है, सो दे वर एबल टू गेन सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स out of these two initiatives, K minus and SOS. Okay, they were able to serve customers better at a much higher speed, and they were able to reduce their cost because
they actually reduced their infrastructure of the operations. Okay. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक नई स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो है जो ली जा रही है, ठीक है, उसमें उन्होंने जो है वो जो रेस्टोरेंट मैनेजर थे, ठीक है, रेस्टोरेंट मैनेजर का रोल भी जो है वो उन्होंने चेंज किया। उन्होंने कहा कि भाई कि जब तक जो है वो हम रेस्टोरेंट मैनेजर्स को जो है वो इस तरफ जो है हम लगाए रखेंगे कि जनाब कि आपने जो है खाना पकाने में भी इन्वॉल्व होना है और किचन मतलब जो सफाई में भी आपने इन्वॉल्व होना है, तब तक जो है वी कैन नॉट ग्रो, ठीक है। जो करंट सेटअप था, करंट सेटअप में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जनाब के हेडक्वार्टर जो था वो तमाम के तमाम जो है वो काम किया करता था, फोरकास्टिंग भी किया करता था कि जनाब आपको जो है वो किन चीज़ों की जो है ज़रूरत हो सकती है, ठीक है, हेडक्वार्टर ही आपको सामान भेजा करता था। लेकिन जैसे-जैसे ये अब नए इनिशिएटिव्स जो है वो इम्प्लीमेंट होते जा रहे थे, तो टाको बेल thought that it is important that we should change the role of the restaurant manager. Now we should empower them, we should give them more decision making abilities so that they could uh, oversee the restaurant themselves. अब अगर इसमें जो है वो हम इनके ही अल्फाज जो है देखें, ठीक है, the vice president of human resources of Taco Bell, okay, what he's saying. At the time we designed the new Taco Bell in late 1989, we realized that we need a whole new people system. Uh, we were we were going to we were going to be asking people to do new things, and we realized that we would need new training both in content and delivery. How we paid people would have to be different, and how we manage people would have to be a change. We would go to more management by exception, more coaching, broadening spans, taking out layers. Communication would have to improve. The culture would have to change. अब ये देखें बहुत सारी की सारी चीज़ें हैं जिनको बता रहा है। वो कह रहा है कि जनाब कि हमने जो है वो कम्युनिकेशन भी हमने जो है डेफिनेटली इम्प्रूव करनी है, ठीक है। हमने जो है वो अपना जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है उसको जो है हैवी नहीं करना, उसको जो है हमने लीन करना है, ठीक है। वी विल नीड टू मैनेज बाय एक्सेप्शन। मैनेज बाय एक्सेप्शन का मतलब जो है वो ये है कि लोगों को जो है वो हमें चार्ज देना होगा, लोगों को एम्पावर करना होगा कि जनाब कि आप अपने काम जो है चीज़ें जो है आप खुद करें, एंड वी विल जस्ट periodically have a check on them कि whether they are doing their job properly or not. Okay, Janab. Now we also see that the role of the district manager was also changing. अब जब आप रेस्टोरेंट मैनेजर की आप बात कर रहे हैं या असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर के रोल को आप चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब जो है वो ये हुआ कि अब आपका जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग वेरियस रेस्टोरेंट, ठीक है, उसका रोल भी जो है चेंज होगा। अब पहला काम जो है उन्होंने ये किया कि उसका जो रोल उसका जो नाम था उसको जो है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के बजाय उसका नाम दे दिया मार्केटिंग मैनेजर। अब उसका काम जो था वो ये भी था कि जनाब के ना सिर्फ जो है वो जो रेस्टोरेंट उसके अंडर आते हैं उनको जो है वो मैनेज करें, उनको जो है फॉर एग्जांपल कोच करे, बल्कि इसके साथ साथ उसका काम ये भी था कि जनाब वो ये भी देखे कि जनाब के व्हाट कुड बी द सम न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दैट द टाको बेल कुड टैप ऑन, ठीक है। दैट्स व्हाई दे रीनेम्ड दिस पोजीशन एज द मार्केटिंग मैनेजर। अच्छा, अब इन्होंने जो पहले हमने जिक्र किया था कि जनाब के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स थे दे एक्टेड लाइक अ पुलिसमैन। तो उन्होंने जो है इस अप्रोच को चेंज करने के लिए जो एक इनिशिएटिव लिया वो ये लिया कि पहले एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो था वो तकरीबन 3 रेस्टोरेंट को जो है मैनेज किया करता था, ठीक है। पहले उन्होंने जो है उन्होंने उसका जो स्पैन था उसको बढ़ा के 6 रेस्टोरेंट कर दिए। इसके बाद जो है उन्होंने 6 से 12 कर दिया। अब जब एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को जो है 12 रेस्टोरेंट जो है मैनेज करने हैं, तो अब उसके लिए जो है वो ज़ाहिर है कि पॉसिबल नहीं था कि जनाब के एक-एक रेस्टोरेंट को जो है वो जाके जो है वो चेक किया करे और वही पुलिसमैन अप्रोच फॉलो किया करे जो कि पहले किया करता था। सो दे वर फोर्स्ड टू डू मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कि जहाँ पर जो है वो अब उन्होंने अपने जो रेस्टोरेंट मैनेजर्स थे उनको जो है ट्रेन करना शुरू किया, उन्होंने कोच करना शुरू किया, ठीक है, सो दैट दे कुड रन देयर अफेयर्स एट देयर ओन। लेकिन एट द सेम टाइम जो क्योंकि जो इनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड हो गई थी, तो बहुत सारे जो उनके जो फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स थे दे एक्चुअली कुड नॉट टेक द लोड एंड दे दे रिजाइन, दे लेफ्ट द टाको बेल। While they were having more and more expectations from their employees, it was actually very important that the Taco Bell come up with a new incentive systems, ठीक है, कि आपने जो अपने लोगों का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसको आपने एक्सपेंड कर दिया है, नाउ देयर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम हैव एक्सपेंडेड,
So it is actually very important that you change their incentives. Okay. बिगिनिंग में जो था वो ये था कि जनाब कि जब इन्होंने इनकी जो जॉब प्रोफाइल, इनके जॉब डिस्क्रिप्शन जब इन्होंने चेंज की, तो इन्होंने इनके जो फॉर एग्जाम्पल जो मॉनिटरी बेनिफिट थे, जो सैलरी स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये जो नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स थे, उनको चेंज नहीं किया, और उन्होंने जो है वो वही मॉनिटरी बेनिफिट उनको दे रहे थे कि जो कि इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड थे। नतीजा जो है ये हुआ कि बहुत सारे जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने ये देखा कि जनाब कि हमारी जो जॉब ड्यूटीज़ हैं उनको तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो इंक्रीज़ नहीं किए गए। सो मैनी ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ एक्चुअली went to the other fast food restaurant. Later on, Taco Bell realized this, and they changed their incentive system significantly. ठीक है, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, इसके अलावा जो है वो आपके जो आपका रेस्टोरेंट मैनेजर थे, असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर्स थे, ठीक है, इनके इनकी जो सैलरीज थी वो उन्होंने जो है वो सिग्निफिकेंटली जो है वो रेज कर दी। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट मैनेजर्स थे या जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स थे, ठीक है, इनके जो कैरियर पाथ्स थे, उन कैरियर पाथ्स को जो है वो उन्होंने सिग्निफिकेंटली जो है उन्होंने रिवाइज किया ताकि इनके पास जो है वो ऑप्शन जो है अवेलेबल हो। ये जो टाको बेल के जो एम्प्लॉयज़ हैं, they could see clearly that while the Taco Bell is following a growth strategy, and they are actually expanding the job description of their employees. So at the same time, they are also providing them more incentives, but that is both the monetary incentives as well as the non-monetary incentives. While Taco Bell was doing all these things, it was actually very important for them that they should monitor the performance of their employees or the performance of their restaurants. कि हम किस तरह से जो है वो इस बात को इंश्योर करें कि हमने जो नए सिस्टम्स इम्प्लीमेंट किए हैं, हमने जो नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट की हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉलो द वैल्यू स्ट्रेटजी, ठीक है, कि क्या वाक़ईतन जो है वो हमारे एम्प्लॉइज़ जिन्हें हम इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, ठीक है, बेनिफिट भी दे रहे हैं, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी दे रहे हैं, क्या ये वो काम उस तरह से कर रहे हैं कि जिस तरह से जो है वो होना चाहिए, ठीक है। सो दे क्रिएटेड डिफरेंट सेफ्टी नेट्स। अब सेफ्टी नेट्स का पर्पस जो है था वो ये था कि कंप्लायंस को जो है चेक किया जाए। तो पहला जो सेफ्टी नेट था वो था जनाब टोल फ्री टेलीफोन नंबर। अब ये जो टेलीफोन नंबर था, ये टेलीफोन नंबर जो है बेसिकली उन्होंने कस्टमर्स को जो है प्रोवाइड कर दिया था कि जनाब आपको कोई भी शिकायत हो, कोई कंप्लेन हो हमारे किसी भी रेस्टोरेंट के बारे में, हमारे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, यू कैन एक्चुअली कॉल दिस नंबर एंड यू कैन register your complaint, or if you have any suggestion you can provide us a suggestion, and then we shall record it, we shall review it, and we shall implement it if it is worthy enough. The other safety net was mystery shopping. mystery shopping का मतलब जो था वो ये था कि जनाब के जो टाको बेल के जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, दे एक्चुअली दे वर नॉट द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द सेम रेस्टोरेंट, ठीक है। ये बेसिकली जो है एक इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय, मतलब टीम बनाई जाती थी डिफरेंट फ्रॉम बाय गैदरिंग द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स, और इनका काम जो है ये होता था कि जनाब कि ये किसी भी रेस्टोरेंट टाको बेल के रेस्टोरेंट पे जो है ना, ये एक सरप्राइज विजिट किया करते थे, ठीक है, और वहाँ पे जाके जो है वो चीज़ें वगैरह जो है वो खरीदा करते थे, और जो टाको बेल का जो स्टाफ होता था उसको इल्म नहीं होता था कि जनाब कि ये जो है ये टाको बेल के एम्प्लॉयज़ हैं। पर्पस जो है वही होता था कि इस बात को जो है इंश्योर किया जाए कि जनाब कि वाकई लोग जो है सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड सेफ्टी नेट वाज दी मार्केटिंग सर्वेज। दे कंडक्टेड मार्केटिंग सर्वेज एज वेल, कि जिसमें जो है टाको बेल के जो एम्प्लॉयज़ थे दे एक्चुअली सर्वेड द कस्टमर्स टू फाइंड आउट इफ दे हैव एनी कंप्लेंट्स और इफ दे हैव एनी सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट्स। अच्छा, अब ये तमाम के तमाम जो उन्होंने काम किए, ठीक है, एंड इफ़ यू रिकॉल दैट इन द बिगिनिंग टाको बेल्स operations were labor incentive, and they used technology sparingly, ठीक है। ऑल्दो जब इन्होंने एक सीरीज ऑफ चेंजेस जो है इंप्लीमेंट करने शुरू किए, ठीक है, जो मैंने डबल जो उनकी अपना असेंबली लाइन की जो मैंने बात की थी, तो पहले आपको मैंने बताया था कि दे यूज्ड टू यूज़ दी मैनुअल प्लास्टिक बोर्ड। तो जब उन्होंने ये असेंबली लाइन जो चेंज की, तो उसके साथ साथ जो है उन्होंने उस मैनुअल प्लास्टिक बोर्ड को भी ख़त्म कर दिया, और एक बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, ये पॉस जिसको हम कहते हैं, वो उन्होंने जो है वो कस्टमर काउंटर पे जो इंस्टॉल कर दिया था, एंड दिस पॉस सिस्टम वाज लिंक्ड विद a monitor screen
that was installed on the food assembly line. ठीक है, तो होता था कि जनाब कि जैसे ही जो है वो ऑर्डर जो है पंच होता था, तो ये ऑर्डर जो है ये जो टेलीविजन स्क्रीन थी उसके ऊपर जो है वो नजर आना शुरू हो जाता था। ठीक है, और जो आपके जो लोग थे जो कि असेसमेंट में काम कर रहे थे, ठीक है, दे कुड सी दिस इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयर द फूड। तो वो जो पहले का मैनुअल सिस्टम था कि जनाब कि आपने जो है वो वर्बली जो है अपने ऑर्डर पास किया और उसके बाद जो है वो आपने चीज़ जो है प्रिपेयर करना शुरू कर दी, एंड देन यू फॉरगेट समथिंग एंड देयर वर एरर्स इन द ऑर्डर, सो वो चीज़ जो है वो रिमूव हो गई। अब इन तमाम कामों को करने के बाद जो है वो टाको बेल फेल्ड कि जी यहाँ पे जो है वो हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो इस्तेमाल करने की जो ज़रूरत है। वी नीड सम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स सो दैट हमने अब जो मैनेजर्स को जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं वो उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो फुलफिल कर सकें। So they implemented TACO. TACO was abbreviation of total automation of company operations. ठीक है, Taco Bell was the name of the company, and the TACO was the name of the system, Total Automation of Company Information. अब इस सिस्टम से जो है वो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन, राइट, उनको जो मैनेजर्स को जो है अवेलेबल हो गएंगे जो कि पहले अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। मिसाल के तौर पर जो है जो इनका जो रेस्टोरेंट का जो शेड्यूल था, ठीक है, कि जनाब के कब जो है फॉर एग्जाम्पल चीज़ें जो है वो आनी है, एम्प्लॉयज़ को शेड्यूल करना है, उनका ड्यूटी रोस्टर बनाना है। विद दिस न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम दे वर एबल टू डू सो। ठीक है, सिमिलरली जो मार्केटिंग मैनेजर्स थे, मार्केटिंग मैनेजर वर एबल टू यूज टाको टू फाइंड आउट देयर सेल्स पैटर्न, सेल्स ट्रेंड्स। ठीक है, ताकि वो अब इस बात को देख सकें कि जनाब के और क्या मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज जो है हमारे पास पॉसिबल हो सकती हैं फॉर द टाको बेल। ठीक है, and finally taco provided them a communication function that actually fulfilled their need of coordination between the marketing managers and the store managers। ठीक है, टाको के आने से पहले जो है वो उनके पास कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं था कि जिसमें मार्केटिंग मैनेजर्स और इनके जो रेस्टोरेंट मैनेजर या जो स्टोर मैनेजर्स हैं ये आपस में जो है वो रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकें, बट टाको प्रोवाइडेड देम दिस फैसिलिटी। 1991 to 1994 continuous transformation creating the leaning organization। ओके, अब हम ये देखते हैं कि जनाब कि जो इनिशिएटिव्स जो जॉन मॉर्टन ने इम्प्लीमेंट किए हैं, ठीक है, रिजल्ट क्या निकला है इनका? रिजल्ट जो है ये निकला है कि 1983 में टाको बेल का जो रेवेन्यू था वो था 700 मिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, और बाय 1988 द रेवेन्यू इंक्रीज टू $1.6 बिलियन, although they more than doubled, right, their revenue. Still the CEO and the president was not satisfied। Okay, अब इसका गोल क्या है? गोल जो है वो ये जनाब कि वो ये चाहता है कि मैं टाको बेल को 25 बिलियन फूड रिटेलर बनाऊं जिसका एक वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, जिसमें जिसमें मोर देन 200,000 POAs हो। POAs का मतलब जो है पॉइंट ऑफ एक्सेस। ठीक है, पॉइंट ऑफ एक्सेस। जॉन मार्टिन का एक और जो बेसिकली कह लें कि ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि टाको बेल को जो है वो एक कन्वीनियंस फूड बिजनेस में जो है वो कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, कन्वीनियंस फूड बिजनेस का मतलब जो है वो ये कि जनाब आपके दिस इज अ काइंड ऑफ फूड बिजनेस इन विच दी जो 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 फ्रीक्वेंटली रनिंग फूड आइटम्स हैं, ठीक है, वो जो है वो कन्वीनियंटली एंड इजीली जो है वो अवेलेबल हो। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं जनाब के जो इनके जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, ऑपरेशंस जिस तरह से जो है मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स होते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब इनको जो है वो वेरियस थ्रेट्स के हैं। ठीक है, जाहिर है कि लोगों के जो है वो जॉब प्रोफाइल चेंज कर रहे हैं, डिसिप्लिन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उनको जो है वो नए नए जो है वो काम दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को जो है एट द सेम टाइम जो है एक्सपेंड कर रहे हैं। तो नाउ व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्रेट टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी? ठीक है, मेजर थ्रेट जो था वो था कॉम्प्लेसेंसी। ठीक है, आपका जो कल्चर रहा है वो कल्चर जो है वो आपको पता है कि किस तरह का जो है वो रहा है। ठीक है, तो सवाल जो है वो ये है, अब हम अपने लोगों को, ठीक है, अपने लोगों को जो है वो किस तरह से जो है वो न्यू कल्चर की तरफ जो है वो लेकर आएंगे। खास तौर से उस वक्त के जब हम जो है वो एक बहुत ही एक्सटेंसिव एक्सपेंशन प्लान जो है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। सो द आंसर
to this question, that how we are going to actually change our culture, how do we actually make our organization an organization that is not only expanding quickly, but also understanding that how we are expanding, okay, in which kind of business we are. So they opted the concept of a learning organization, okay. So now if we look at the code of John Warden, what he wanted from developing this particular learning organization. Learning organizations are able to capture, share, and take action on information better and faster than the competitor. A learning organization is not top to down and is not top to bottom. It works side to side. It's an organization that gobbles up information and experiences like a sponge and shares those learnings throughout the enterprise in minutes, hours, and days rather than weeks, months, and years. अच्छा, अब उन्होंने जो है वो क्या किया कि जो टाको जो इन्होंने पहले डेवलप किया था, ठीक है, दे leveraged it and they started to store दी बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो डिफरेंट मैनेजर्स में आप जो डिफरेंट रेस्टोरेंट में जो डिफरेंट मैनेजर्स जो है आपके जो काम कर रहे होते थे, ठीक है, दे स्टार्टेड टू write or extract the best practices out of them and then they shared these best practices across Taco Bell, ठीक है। अब उसका फायदा जो है वो ये हुआ कि जनाब के आपके पास जो है वो अगर एक चीज़ की बेस्ट प्रैक्टिस अवेलेबल है, तो आपके जो बहुत सारे जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, वो मतलब दे विल नॉट री इन्वेंट द व्हील, they are going to follow these best practices, okay, rather than come up their own best practices, experience them, try them, okay. Now after this initiative, they also implemented another initiative called टीम मैनेज्ड यूनिट्स। अच्छा, अब टीम मैनेज यूनिट का मतलब जो है क्या था, इन्होंने जो है ये कहा कि जनाब कि अब हमने जो है ये तमाम काम करने के बाद, ठीक है, अगर हम अपने जो अपना जो स्टाफ है, ठीक है, उसको जो है वो एम्पावर नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये जितना भी अभी हम काम कर रहे हैं, जितने में एक्सपेंशन कर रहे हैं, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, दिस एंड दैट, सारे के सारे इनिशिएटिव दे विल फेल। So now what they did, they created टीम मैनेज यूनिट। टीम मैनेज यूनिट जो थे बेसिकली ये इनके ही अपने जो है वो स्टाफ मेंबर्स होते थे, लेकिन ये एक ऐसी टीम होती थी कि जिसको जो है वो पहले से जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया करते थे, ठीक है। और इनकी जो ट्रेनिंग थी, उस ट्रेनिंग का जो खास एलिमेंट था वो ये था दैट दे वर ट्रेन्ड एनफ टू रन अ स्टोर विदाउट अ फुल टाइम ऑन साइट मैनेजर, ठीक है। तो अब हम और से देखें तो पहले इन्होंने क्या किया कि पहले जो है इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स थे, ठीक है, उनको उन्होंने एम्पावर किया। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को एम्पावर करने के बाद जो है दे वेंट टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज द रेस्टोरेंट मैनेजर्स, एंड देन दे वेंट ऑन टू एम्पावरिंग द लोअर कैटेगरी ऑफ देयर एम्प्लॉयज, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि जनाब तीनों लेवल्स पे, ठीक है, चाहे हम इंडिविजुअल स्टाफर की हम बात करें, चाहे हम मैनेजर्स की हम बात करें, या चाहे फॉर एग्जाम्पल हम उनसे जो ऊपर के जो मैनेजर्स हैं जिनको हम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कह रहे हैं उनकी आप बात करें, all of them are empowered at their own level. So they are free to take decisions at their own level and they are not bound or they are not dependent on their immediate bosses to take each and every action that they used to do. So we can see that the Taco Bell, as it's expanding, it is also realizing that while they are expanding, while they are going for more and more coordination, increased communication, it is very important that they also empower people at their respective level, because until unless they do so, they let the people take the decision at their own level, the the objectives of rapid growth and expansion will not be achieved. ओके जी, अब इसके बाद उन्होंने जो जो नेक्स्ट स्टेज था, ठीक है, अब लोगों को जो है वो आपने एम्पावर किया, तो एम्पावर करने के बाद जो है वो ज़रूरी था कि जनाब अब जो आपने जो टाको जो सिस्टम बनाया था, टाको आपने इस्टेब्लिश किया था, कीपिंग इन व्यू द नीड्स ऑफ द मैनेजर्स। अब आपने जब लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को जब आपने एम्पावर कर दिया है, नाउ सो नाउ दे नीड इंफॉर्मेशन एज वेल, ठीक है, कि मतलब अब समझते तीनों लेवल पे जो आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन सबको जो है वो इन्फॉर्मेशन की नीड है and they need this information fast. So what they did, they developed Taco 2, ठीक है।
So that was an extension, or you can say that it was an enhanced version of the Taco 1 जो उन्होंने पहले जो है implement किया था. ठीक है. Okay जी, building an intellectual network. Okay जनाब. अब another thing that they would do, they also started to use the expert systems. ठीक है. Expert system is basically an IT based system in which what we do is that we try to combine the expert advice from the human being and let the computer use this expert advice to make informed decisions. So for example, अगर मेरे पास एक expert system मौजूद है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं जो है वो उस expert system के अंदर जो है वो फीड करूँगा इस इंफॉर्मेशन को कि जनाब के जो डिफरेंट सिचुएशन में हमारे मैनेजर्स ने जो है वो क्या डिसीजंस लिए. ओके. और इसके बाद जो है वो फॉर एग्जांपल एक जो नया मैनेजर जो है वो इस एक्सपर्ट सिस्टम को जो है यूटिलाइज कर सकता है. अगर मिसाल के तौर पर जो है ही रन्स इनटू अ सिमिलर सिचुएशन दैट प्रीवियस मैनेजर्स फेस्ड. ठीक है. तो एक एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो उसके पास जो है वो इस बात की इंफॉर्मेशन मौजूद है कि पहले जो मैनेजर्स ने जब इस सेम सिचुएशन को फेस किया तो उन्होंने क्या क्या डिसीजंस लिए. ठीक है. क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे एंड सो ऑन. So when a new manager is going to face the same situation, this new manager can use the expert system to understand and to make an informed decision that how I should deal with this situation based on what the other managers have already done to go through this situation. Okay, this is the prime objective of an expert system. Though Taco Bell implemented an expert system so that they could develop what we call an intellectual network, and the purpose of this intellectual network was what? To facilitate knowledge transfer and communication. Okay janab, ongoing innovation. Okay ji, they also implemented a concept called restaurant of future. ठीक है. रेस्टोरेंट ऑफ फ्यूचर का मतलब जो था वो ये था कि जनाब के आपने एक टेस्टिंग साइट जो है वो आपने बनाई हुई थी. ठीक है. टेस्टिंग साइट का मतलब जो है वो ये कि इट वाज फुल फ्लैज रेस्टोरेंट. लेकिन यहाँ पे आप करते जो थे वो ये थे कि यहाँ पर आपके पास जो डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज थे, ठीक है, इनको जो है वो आप टेस्ट किया करते थे. मिसाल के तौर पर जो है आपने कहा भाई मैंने एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवानी है या मतलब नए सेट ऑफ ऑपरेशन जो है हम ट्राई करने. तो दीज वर द साइट्स वेयर you actually performed all these experiments. Okay. Now the bigger question in front of the Taco Bell was that the can Taco Bell get there from here. कहने का मतलब जो है वो ये कि जो जॉन मार्टिन ने इन्विजन किया है कि जनाब कि हमने जो है वो $25 बिलियन जो है वो बिजनेस बनना है. ठीक है. तो क्या टाको बेल की जो एग्जिस्टिंग स्पीड ऑफ एक्सपेंशन है, ठीक है, जो उसके जो इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है, कैन इट टेक द प्रेशर? Can the Taco Bell actually reach this particular goal that the John Martin envisioned, right? So there are multiple factors that we need to see. Okay. So the pursuit of value, extraordinary convenience and accessibility, and unparalleled customer satisfaction. These are the factors, okay, that we can think that yes, these are the factors, or these are the key abilities or the key traits of Taco Bell that can push Taco Bell to become a $25 billion business that the John Martin has envisioned. Okay. The other thing, the other very, very important factor that could lead to Taco Bell to its future is its employees. टाको बेल का जो रिन्यूड इंटरेस्ट था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज के ऊपर, ठीक है, दे दिस विजन, दिस रिन्यूड फोकस हैज प्रोवाइडेड देम with a lean organizational structure in which all the levels of employees are empowered, or all the levels of the organization are empowered enough to take decisions at their own level. So yes, we can say that there are multiple factors including the human resources of the Taco Bell that tells us that there is a greater probability that the Taco Bell could become
the $25 billion business that the John Burton had envisioned. Okay. Now, these are the assignment questions that you should now be able to answer after going through this class discussion. Okay. And I also have a detailed, in fact, a detailed lecture in which I have even discussed the minute details, and I shall be providing you the link to that. So once you go through the case study yourself, you go through the class discussion, and you go through the detailed video lecture, you should be able to answer all these assignment questions. Okay, now, uh, now let's move on to the topic of the next week. Uh, for the next week, we have a couple of readings. Let me open up the course outline for you so that I can show you what is the topic of the week 4. Okay. Now, the next topic that we are going to discuss is called building capabilities, organization, and IT infrastructure. ठीक है. आपने जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना होता है तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट यू नीड टू बिल्ड द कैपेबिलिटीज. ठीक है. और ये जो कैपेबिलिटीज होती हैं, दीज आर टू टाइप ऑफ कैपेबिलिटीज. द फर्स्ट इज द organizational capabilities, and the other capabilities are IT infrastructure capabilities. Now, there are two readings that we need to discuss for that particular week. The first reading is the mastering the three worlds of information technology. ठीक है. अच्छा, अब what this reading talks about? This reading talks about three types of information technology, or the three categories of information technology, each of which provides different organizational capabilities and demands very different kinds of management interventions. ठीक है. तो जब आप आईटी की हम बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आईटी. ठीक है. जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने पास इम्प्लीमेंट कर सकती है, and each category of IT can provide different set of organizational capabilities, and in order to manage each kind of or each category of information technology, the management need different type of intervention. Now let's see which three types of information technology are we talking about. Okay. So here are the three types or three categories of information technology that the article defines. The first category of information technology is called the functional information technology. It is an information technology that assists with the execution of discrete tasks. ठीक है. The examples of functional information technology are simulators, spreadsheets जैसे कि Microsoft Excel, ठीक है, computer aided design, and statistical software. ठीक है. Then the second category of information technology is called the network information technology. Now, it is the kind of information technology that facilitates interactions without specifying their parameters. ठीक है. अब मिसाल के तौर पर अगर मैं कहें कि जी नेटवर्क आईटी के एग्जांपल्स क्या हैं, तो नेटवर्क आईटी के एग्जांपल्स हैं ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, विकीज, ब्लॉग्स एंड मैशअप्स. ठीक है. The third category of information technology is called the enterprise information technology. It is an information technology that specifies business processes. Okay. Now, what are some examples of enterprise IT? Software for enterprise resource planning, that is ERP, customer resource management, and supply chain management. These are the software that are the IT tools that are classified. They're classified in the category of enterprise information technology. Okay. Now, if we look at some of the characteristics of each category of information technology, so when we talk about functional information technology, right?
The first characteristic is it can be adopted without complements, and its impact increases when complements are in place. Network information technology, it does not specify task or sequence. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ईमेल करनी है तो ईमेल के लिए जो है कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस या टास्क आपको नहीं होता. ठीक है, इट कैन एक्सेप्ट डेटा इन एनी फॉर्मेट्स एंड इट्स यूज इज ऑप्शनल. its use is optional. Enterprise IT, it defines task and sequences, okay, because it is a kind of information technology that specifies business processes. So as such, this type of technology does define the task and the sequence with which these tasks are going to be performed. Okay, and its use is mandatory. For example, when you implement enterprise IT in your organization, then you cannot just ignore it. I mean, once the enterprise information technology is implemented, it is important for everyone to understand that now the use of this technology is a must. It is mandatory. You cannot skip it. Okay, because the enterprise IT specifies business processes. So if you are not using enterprise IT, that simply means you are not following the business processes. Now, if we move forward, these are the definitions of different kinds of information technology, okay, that I already explained to you, but nonetheless, I have highlighted it for you so that you can have a good reference. Okay. अच्छा, अब ऑथर बात करता है कि जनाब कि आप ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ आईटी है, ठीक है, इनको जब आप मैनेज करते हैं, so in order to manage each type of IT, right, you have to have different kinds of management interventions. ठीक है, और ये जो मैनेजमेंट इंटरवेंशन होती हैं, ठीक है, या आप समझ लें मैनेजमेंट स्टेप्स होते हैं, ठीक है, दे कैन बी इन मल्टीपल कैटेगरीज. पहली जो कैटेगरी है, ठीक है, वो है आईटी सिलेक्शन. ठीक है, आईटी सिलेक्शन के बारे में जो आर्टिकल राइटर है वो ये कहता है कि जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, वेदर इट्स फंक्शनल आईटी, नेटवर्क आईटी, एंटरप्राइज आईटी, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछना चाहिए अपने आप से, इससे पहले कि आप इस बात को चूज करें कि आपने फंक्शनल आईटी को चूज, आपके लिए फंक्शनल आईटी बेहतर है, आपके लिए एंटरप्राइज आईटी बेहतर है, या आपके लिए नेटवर्क आईटी बेहतर है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको अपने पास से पूछना चाहिए वो ये पूछना चाहिए, व्हाट डू वी नीड आईटी टू डू फॉर अस. आपने, अगर आपको याद हो, हमने पहले जो डिस्कशन किया था, डू वी हैव टू मच आईटी, ठीक है, वहां पर भी जो है बेसिकली जो फंडामेंटल बात जो हम डिस्कस की थी वो ये की थी कि जनाब कि हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उतनी चाहिए होती है जिससे हम अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. ठीक है, नो मोर नो लेस. So definitely when we are going to select the information technology or the type of information technology for us, the first most important question for us is that what do we need IT to do for us. IT को अगर हम implement करेंगे अपनी organization में तो IT हमारे लिए क्या कर सकती है. ठीक है, so based on the answer to this question you can decide that which type of information technology will fulfill your business objectives. ठीक है, then the second part is the IT adoption. ठीक है, कि जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, so how do you do it? Okay, so as the article states, after IT selection, executives attention returns to adoption, the hard work of putting the technology they have invested in to productive use. At this stage, managers' main responsibility is to help create the complement that will maximize IT's value. अब IT adoption की जब बात आती है तो अब मैनेजमेंट को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि इनका सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आईटी एडॉप्शन, वो ये है कि जो भी उन्होंने टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो उन्होंने मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए
जो कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए उन कॉम्प्लीमेंट्स को प्रोवाइड करें। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं जनाब फंक्शनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो फंक्शनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट या कोई प्री रिक्विजिट की जरूरत नहीं होती। लेकिन एंटरप्राइज आईटी को अगर आप इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे होते हैं, देन देयर आर सर्टेन कॉम्प्लीमेंट्स दैट यू नीड टू प्रोवाइड। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कुड बी दैट देयर शुड बी सम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से जो है मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब जो है वो ये होगा कि आप एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट to understand that when it comes to the IT adoption, what kind of complements the particular category of information technology requires, and then it's their responsibility to provide these complements in order to adopt this particular type of information technology. The next stage is the IT exploitation. As the article states, a business leader's third IT related responsibility is to extract the maximum benefit from technologies once they are in place. ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे देखना है कि जनाब कि हमने जो है वो जो आईटी हमने अपनी इम्प्लीमेंट की है, जो अडॉप्ट की है, उसके से हम जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट किस तरह से जो है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, एज यू कैन सी, कंपनीज कैन बेस्ट एक्सप्लॉइट functional IT by fine tuning organizational complements. ठीक है। When we come to network IT, you can exploit NITs such as email and instant messages at your own. But business leaders have a role to play in exploiting newer technologies like blogs and wikis. So we were talking about the IT exploitation. So the bottom line is that when it comes to the IT exploitation, the managers of an organization need to think about the ways that how the particular type of information technology that they have implemented in their organization can be exploited. And what we mean by exploitation, it means that how we can drive the maximum benefits out of the technology that we have implemented in our organization. Now, if we look up, this is something that you should read the IT dialogue. Okay. So now these are the different questions that the managers need to answer when they are going to implement the different types of information technology, and it will actually help them in all these steps of actually leveraging the information technology in their organization. And what were the different steps? The first step was IT adoption. The second step, the first step was the IT selection. The second step was the IT adoption, and the third step was the IT exploitation. So if we sum up this particular reading, there are three different kind of information technology that an organization can implement or can leverage in their business. The first is called the functional information technology. The second one is called the network information technology, and the third one is called the enterprise information technology. Each type of information technology can have its own complements. What the business manager need to do is that there are three stages: the IT selection, the IT adoption, and the IT exploitation, in which they will need to make different decisions with respect to the type of information technology that they have implemented in order to drive the maximum benefits out of the technology that they have used in their organization. Now let's come to the second reading of the topic, and the IT audit that boosts innovation. Okay. Now, what is the leading question or the bottom line of this article? So the leading question or the bottom line or the question that this article is trying to understand or trying to answer: how can organizations use information technology to increase the payoffs of their innovation investment? ठीक है। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, ठीक है, किन तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं to actually increase
the ROI of your investment into the information technology. ठीक है, अब आर्टिकल की फाइंडिंग्स क्या है? फाइंडिंग्स जो है वो ये है that IT departments should support innovators activities by developing capabilities critical to the innovation process. ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट जो है मौजूद होता है या R&D डिपार्टमेंट मौजूद होता है. तो IT डिपार्टमेंट का काम जो है वो ये है कि they should support their activities by developing capabilities critical to the innovation process. IT डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, ठीक है, ऐसी कैपेबिलिटीज प्रोड्यूस करनी चाहिए कि जिससे जो R&D डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज हैं उनको सपोर्ट मिले. ठीक है, information technology can provide software tools that streamline the innovation process at all of its stages. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं कि जो कि इनोवेशन प्रोसेस को सपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट फाइंडिंग. थर्ड इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, routines and policies are needed that give innovators adequate control over the IT resources they require. तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब के R&D डिपार्टमेंट जो है वो जो मतलब जो IT टूल्स हैं, जो IT रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको जो है वो डायरेक्टली जो है वो एक्सेस कर सके. ठीक है, सो व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू डू, द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू डेवलप रूटीन्स एंड पॉलिसीज. जब ये रूटीन्स एंड पॉलिसीज जो है वो डेवलप हो जाएंगी तो उसके बाद ये जो R&D डिपार्टमेंट है उसके लिए ये काम आसान हो जाएगा कि वो किस तरह से जो है वो जो उनको जो IT रिसोर्सेज जो है रिक्वायर्ड है, ठीक है, उनका कंट्रोल जो है वो एक्वायर कर सकते हैं. ओके जनाब, मूव फॉरवर्ड. ओके, the author of the article says that capabilities, tools, and controls are the three legs of the innovation stool. Excellence in any two of the areas is insufficient if the third is lacking. तो वही कहता है कि जनाब कि आपका मतलब आपका जाहिर बात है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ही वो डिपार्टमेंट होता है कि जो कि इनोवेशन लाता है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाता है. अब वो कह रहा है कि जनाब कि ये मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने इनोवेशन को मतलब बढ़ाना है, ठीक है, या अपने R&D डिपार्टमेंट को जो है वो आपने स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि दे हैव थ्री थिंग्स, कैपेबिलिटीज, टूल्स एंड कंट्रोल. और वो कहता है कि जनाब कि इसमें से अगर एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो उस सूरत में जो है वो आपका जो R&D डिपार्टमेंट है या आपकी जो इनोवेशन की जो कैपेबिलिटी है वो कभी भी फ्लॉरिश नहीं हो सकेगी. ठीक है, अब कैपेबिलिटीज में जो है क्या आता है, वो कहता है कि जनाब कैपेबिलिटीज में 6 चीज़ें शामिल हैं. पहली चीज़ पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. नंबर 2 कोलैबोरेशन. नंबर 3 knowledge and information management. Number 4 business IT linkages. Number 5 ambidexterity. And number 6 comparative intelligence. ठीक है, so portfolio and project management. This is a capability that you can use to organize and administer the company's portfolio of innovation activities. This is the first capability. Okay, the second capability is what? Collaboration. This capability would allow the innovators or in the IT department, right, with the requisite knowledge and expertise to connect with one another, ठीक है, across distances and zones. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आपका जो R&D डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, it provides them the capability to connect with each other, share knowledge and collaborate. The next capability, ठीक है, is knowledge and information management. Information technology can provide you tools so that you can store and reuse the knowledge developed by your R&D department. ठीक है, business IT linkages. Okay, now the objective of this capability is to make IT departments more like partners with innovation centers. They foster, thereby fostering productive interaction between them.
अब बिजनेस आईटी लिंकेज का मतलब जो है वो ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये कैपेबिलिटी हो कि उन्होंने अपने आईटी डिपार्टमेंट को इस तरह से डेवलप किया हो, कल्चर को उस तरह से जो है वो बिल्ड किया हो कि जो आईटी डिपार्टमेंट है वो आपका जो आर एंड डी डिपार्टमेंट है उसके पार्टनर के तौर पे काम करे। ठीक है, बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट के तौर पे काम ना करे कि जिसमें वो क्या कि नीचे हमें तो अपना काम करना होता है, आपको अपना काम करना है, तो हमें जो है वो मतलब वी आर नॉट पार्टनर्स, we are different independent department, and if you want any of your help then you have to go through the whole bureaucracy of the organization. So that should not be the case. Information technology department should partner with the R&D department in order to foster the innovation. The next capability is the ambidexterity. ठीक है, देखिए एम्बीडेक्सटरिटी का मतलब क्या है? एम्बीडेक्सटरिटी का मतलब जो है वो ये है, मतलब अगर इसका इंग्लिश डिक्शनरी में हम मतलब देखें तो उसका मतलब जो है वो ये होता है द एबिलिटी टू यूज बोथ हैंड्स इफेक्टिवली। ठीक है, अब जब आप एम्बीडेक्सटरिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मतलब आपका जो है कहने का ये है कि जो आपका जो आईटी डिपार्टमेंट है, ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो ना सिर्फ ऑपरेशनल एक्सेलेंस होनी चाहिए, इसके साथ साथ वो जो स्ट्रेटेजिक विजन है, ठीक है, वो भी उसके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ऑपरेशनल एक्सेलेंस का मतलब जो है वो ये है कि जनाब व्हाट वी डू वी आर वेरी गुड एट इट। ठीक है, वी आर दी प्रोफेशनल्स of our field. Okay? We are the best in our field. At the same time, we must not forget that in order to increase the operational excellence, what is our strategic objective? So, for example, if our strategic objective is to actually provide the support to the organization's different functions, ठीक है, तो हम अपनी ऑपरेशनल एक्सेलेंस के ऊपर इतना ज्यादा फोकस जो है वो नहीं करेंगे कि वहाँ कि जहां पर जो है हमारी ये एबिलिटी जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाए कि जहां पर हम बाकी जो डिफरेंट फंक्शन है बिजनेस के उनको जो है सपोर्ट प्रोवाइड ना कर सकें। ठीक है, सो एम्बिडेक्सटरिटी मींस दैट maximizing the operational excellence while while maintaining a clear strategic vision, that is balancing the attention to each, okay, as warranted by the environment. The sixth capability is the comparative intelligence. This capability facilitates learning what competitors are doing, what they are failing to do, and thus where innovation opportunities might lie. तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू डेवलप सिस्टम मोर लाइक नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के, जहाँ पर जो है आप ये इंटेलिजेंस जो है वो गैदर करें कि जनाब आपके कॉम्पिटिटर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, किन जगहों पे जो है वो फेल हो रहे हैं, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, द सेकंड leg of the innovation excellence tool is the tools. ठीक है, tools means of course the different information technology tools that are at your disposal. ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा जो है वो आगे हैं, so let me show you the yes, okay, if you can look at this particular page. Okay, this is the page number 44 of the article. It actually lists a variety of information tools that can be used to support and manage innovation. So, for example, there are idea generation tools, there are analysis tools, there are collaboration tools, and there are innovation management tools. So, there are so many tools that you can use to support and manage innovation. Okay. The third category, third category is called the control. And as the author of this article notes, one of the most important roadblocks to innovation occurs when R&D staff lacks adequate control of the competing resources and tools they require. और हमने आपसे पहले ही बात की कि जनाब in order to provide them the adequate control to the IT resources, you will need to develop the policies. Okay, अगर आपने जो है पॉलिसी नहीं बनाई तो उस सूरत में जो है वो, क्योंकि जाहिर है जो डिफरेंट जो आईटी टूल्स होते हैं, ठीक है, दे आर अंडर आईटी डिपार्टमेंट। ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट को प्रोक्योर करता है, आईटी डिपार्टमेंट को मैनेज करता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि अगर हमने जो है जो हमारा जो आर एन डिपार्टमेंट है उसको जो है वो कंट्रोल देना है इन टूल्स का या एक्सेस देना है, तो हमारे पास जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी को जो है वो हम इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, कि हाउ हाउ द आर एन डिपार्टमेंट कैन हैव एक्सेस और कंट्रोल
to the tools that are under the control of the IT department. If we do not have the policy, then both the department will not have any way, any formal way in order to exchange the control of the IT resources or the IT tools. अच्छा जी, अब हम आगे चलें तो हम देखते हैं जनाब कि these are some of the lessons that the writer of the article has highlighted, right? There are lessons for R&D manager, there are lessons for the chief executive officers, and then there are lessons for the managers, right? These are the lessons with respect to, you can see that what the different people, for example, how the R&D manage, what the R&D managers, what the chief executive officer, what they need to do in order to ensure that the R&D department have adequate access to various tools they need to foster the innovation. Okay, so for example, if we go further and we look at some of the lessons for IT managers. Okay, so uh, as the article states, as a benchmarker, the IT department can sort through the plethora of tools available to identify those that have been successfully used in similar environments. तो IT managers के लिए जो एक बहुत important lesson है, ठीक है, learn करने का, वो ये है कि IT department की एक बहुत important responsibility जो है वो ये है कि वो tools को benchmark करे, जो डिफरेंट टूल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोक्योर करती हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर R&D डिपार्टमेंट, जिसकी हमने डिफरेंट भी कैटेगरीज भी हमने देखी थी. तो आईटी डिपार्टमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है वो ये है कि वो इन टूल्स को बेंचमार्क करे और इस बात को एनालाइज करे कि जो टूल्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में जो है, सिमिलर इन्वायरमेंट में जो है वो किस तरह से जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं. एंड सो दैट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट विच टूल इज गोइंग टू बी मोर सूटेबल, ठीक है, या फॉर एग्जांपल किस टूल से जो है वो क्या एक्सपेक्टेशन जो है वो की जा सकती है कि जनाब ये हमारे कितने काम जो है वो आ सकता है और कितने काम जो है नहीं आ सकता. ठीक है. Similarly, if we look at the lessons for CEO और द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ठीक है, कि जनाब के टेक्नोलॉजी को जो है वो किस तरह से जो है वो इस्तेमाल किया जाए in order to foster the innovation by supporting the R&D department. ठीक है. So the first lesson for the CEO is that they should actively participate in deciding what innovation initiatives are funded and ensure that the appropriate controls and information are in place for making those decisions. Okay. Then, if you look at the third bullet, another lesson for CEOs is that they should play a key role in creating the business IT linkage capability by appointing to the IT leadership position someone who has a strong knowledge of company processes, goals, and strategy, and who is trusted by other business leaders as opposed to someone whose primary attribute is experience with technology. अच्छा देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है सीईओज के लिए. They really need to understand that when it comes to selecting the head of the IT department, right? Their decision must not be to pick someone who only has experience with technology. मतलब हम जो है वो एक ऐसे बंदे को जो है वो पिक कर लेंगे जिसके बारे में हम ये कहें कि जनाब ये बंदा जो है इसका 25 साल जो है या 30 साल जो है वो टेक्नोलॉजी को मैनेज करने का जो है एक्सपीरियंस है, टेक्नोलॉजी को इससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझता. ठीक है. हमें एक ऐसा शख्स चाहिए, ठीक है, कि जिसके पास ना सिर्फ आईटी के नॉलेज हो, टेक्नोलॉजी की समझ बूझ हो, इसके साथ साथ वो कंपनी के प्रोसेसेस को, गोल्स को और स्ट्रेटजी को भी बहुत अच्छी तरह समझता हो. ठीक है. और इसके साथ साथ he or she is trusted by other business leaders. कहने का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा शख्स होना चाहिए कि जिसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, ठीक है, वो भी उसे ट्रस्ट करते हो. अगर आपका आईटी हेड एक ऐसा आदमी नहीं है, then it will be very very difficult for you. ठीक है.
to provide access to the IT tools and resources to other departments, and to promote IT department as a partner of the other departments in fulfilling the company's objective and and achieving the company's strategic goals. ठीक है, स्पेशली अगर आपका आईटी हेड जो है पसंद का आदमी नहीं है, ठीक है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि अपना जो हम बात कर रहे हैं कि जनाब कि आपको इनोवेशन को जो है फोस्टर करने के लिए आईटी डिपार्टमेंट को जो है वो आर&डी डिपार्टमेंट का जो है वो एक तरह से आपको पार्टनर बनाना पड़ेगा। तो अगर आपका जो आईटी हेड है, ठीक है, उसकी जो है वो कोई स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो आज तक जो है डील करता हुआ आया है, प्रोसेसेस, गोल्स, स्ट्रेटजी जो है वो क्या होती है, या फॉर एग्जांपल पीपल रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, ही हैज नो आइडिया अबाउट इट, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू to actually manage the IT department the way you want to manage it in order to foster the innovation. ठीक है जी? All right. So today we have covered a lot of ground actually. We have discussed two case studies. We have discussed the case study of the tale of the two airlines and the network edge. We have also discussed a larger case, the case of the Taco Bell. ठीक है? And इन दोनों केसेस का जो डिस्कशन था उसका पर्पस हमारा जो था वो ये था कि हम ये देखें कि जनाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं in order to either create new business models or enhance their existing business model. ठीक है, तो जब आप टेल ऑफ द टू एयरलाइंस का केस देखते हैं या आप टाको बेल का आप केस देखते हैं, तो यहाँ पर हमें नजर आता है कि ये दो ऐसे केसेस हैं कि जिसमें जो कंपनीज हैं, ठीक है, they utilized information technology to enhance their existing business models. Okay, and the second topic of our discussion of today was on IT capabilities, जिसमें दो तरह की कैपेबिलिटीज जो है इंक्लूड होती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज और दूसरी infrastructure capabilities. On this topic, we have discussed two readings today. The first reading was the Mastering the Three Worlds of Information Technology, in which we discussed that there are three different types of information technology that an organization can use to achieve a strategic competitive advantage and to achieve a strategic goals. These were functional IT, network IT, and the enterprise IT. And then we also discussed that there are three steps in which these technologies can be implemented in the organization, and managers have different interventions to have in each of these steps to implement different types of technologies. Okay. The second reading that we discussed called the IT audit that boosts innovation, and the leading question that this reading addressed was that how can organization use information technology to increase the payoffs of their innovation investments. And the important finding that we discussed in this reading was that the IT department should support innovators' activities by developing capabilities critical to the innovation process. The IT provide software tools that streamline the innovation process at all of the stages. And then routine and policies are needed that give innovators adequate control over the IT resources they require. हमने ये भी डिस्कस किया कि जनाब कि जो हमने कि किस तरह से क्या क्या कैपेबिलिटीज जो है वो चाहिए होती हैं, ठीक है, आर&डी डिपार्टमेंट को, तो कैपेबिलिटीज, कंट्रोल्स and what was that, capabilities, tools and controls. These are the three things an R&D department need in order to utilize information technology to foster innovation. ठीक है, इसमें कोई भी एक चीज अगर मिसिंग है तो उस सूरत में जो है वो आप इनोवेशन को जो है फोस्टर नहीं कर सकते. ठीक है, and then we also discussed some of the lessons that the R&D managers and the CEO can drive from this particular reading, so in order to boost the innovation in their organization.